Hello children, welcome back, and today we'll be starting and I'll be continuing with the topic which I left yesterday. And yesterday, if you remember, we were dealing with the local hot application. The methods were the dry methods, and today I'll be starting with the local hot application itself, but the moist methods. Okay, so for the very first methods, if you remember, I already taught you in the classification that there were certain methods in the moist heat application. So the same methods we are going to deal one by one. Okay, the very first here is fermentation. I hope you are not just unknown with the term, because in the classification it is mentioned. So fermentation is the moist application which is obviously hot in nature, or you can say fermentation is the hot application, and this application will be moist in the form. And here what we are doing, we are for fermentation we are immersing we are immersing some bandage, or we are immersing some material, some cloth material in the water. Then that material has to be squeezed by using the ringer. Okay, हम क्या करते हैं, मैं वापस हिंदी में बता दे रही हूँ. इसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोई ऐसा मटेरियल का क्लॉथ जिसकी थिकनेस फ्लैनल क्लॉथ से डबल होनी चाहिए. ठीक है, फ्लैनल क्लॉथ से इसकी थिकनेस डबल होनी चाहिए. साथ साथ में हम क्या करते हैं, फिर दिस मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम रिंग आउट करते हैं. मतलब जो भी एक्सेस वाटर है उसको हम रिंग आउट करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं. इसके बाद उस मटेरियल को कवर करते हैं वाटर प्रूफ कवरिंग के साथ. देन इट इज़ अप्लाइड ओवर द area. Got it? Like that it is done. Then I'll read it once for you. Fermentation are the moist application of heat over an area by means of double thickness of flannel, या तो हमारा जो flannel है उसकी double thickness करके that can be applied, or any other soft material wring out from hot water. कि कोई भी soft material जिसको हमने hot water से निकाल कर wring out किया हो, squeeze out किया हो. प्रोटेक्टेड बाय अ वाटरप्रूफ कवरिंग दैट कैन बी वूल एंड बैंडेज. फिर उस पानी को उसको हमने पानी से निकाल के रिंग आउट करने के बाद उसको हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी वाटरप्रूफ मटेरियल, या तो फिर किसी बैंडेज से भी कवर कर सकते हैं, या तो वूल से भी कवर कर सकते हैं. उसके बाद उसे उस एरिया में हम रख देंगे. लाइक दैट फर्मेंटेशन इज डन. Then there are three types of fermentations, that is your simple fermentation, then there is your medical fermentation, and there is your surgical fermentation. ठीक है, so these are a few types of three types of fermentation. Purpose क्या है fermentation का? The very first purpose is it provides relief from pain, it provides relief from congestion. It is also given to the patients who are having urine retention problem. Then it is given for providing relief from inflammation. Then to promote suppuration it is there. Then to stimulate peristalsis it is there. Then to relieve intestinal and renal colic it is given. Then for softening the crust means any kind of, अगर क्या होता है कभी चोट लग जाती है उसमें ऊपर क्रस्ट फॉर्म हो जाता है. क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, हीलिंग स्लो हो जाएगी. पपड़ी सी जम जाती है तो हीलिंग स्लो हो जाएगी. तो क्या करते हैं, उस क्रस्ट को सॉफ्ट करके वहाँ से हम निकाल देते हैं ताकि हीलिंग ज़्यादा जल्दी हो सके. ओके, सो फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रस्ट एंड फॉर द रिमूवल ऑफ द क्रस्ट हॉट फर्मेंटेशन इज यूज्ड. देन टू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सुडेट्स, जो आपका कुछ एक्सुडेट्स हो गए जैसे कि पस हो गया, या फिर कुछ सिरस फ्लूइड हो गया आपका जो वुंड से निकलता है कभी कभी, या तो फिर फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सुडेट्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो hot fermentation is given. Then next, to provide relief from the muscular spasm से relief provide करने के लिए भी it is given. Then to relieve congestion in internal organs, if there is any sort of congestion in the internal organs, so to provide relief from that also it is there. Okay बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा आपने, to stimulate peristalsis. ठीक है, for those who do not know what peristalsis is, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस से वर्ड बना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, सो पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये है कि जब
फूड जो स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, दैट वॉट एवर मटीरियल हैज़ बीन नाउ टेकन फ्रॉम स्टमक इन टू द इंटेस्टाइन, दैट हैज़ टू मूव, ओके, दैट हैज़ टू पास फॉरवर्ड और दैट हैज़ टू मूव फॉरवर्ड। तो वो आगे कैसे बढ़ता है इंटेस्टाइन में, बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन्स में हमारी जो मसल्स हैं वो कैसी होती हैं, इनवॉलंटरीली वहाँ पे क्या होता है, वो फूड को आगे को पुश करती रहती हैं ताकि फूड फिर वहाँ से निकल करके धीरे धीरे रेक्टम की तरफ आ सके। सो दैट मूवमेंट इज दैट मूवमेंट of any kind of food or any kind of material which is received from the stomach into the intestine. The movement of that particular material is known as peristaltic movement. Okay, so yeah, that is peristaltic movement. I have just told you in the very simplest form so that समझ में आ जाए आपको. Fine. So that is peristaltic movement. Then comes to then we'll move to the nurse's responsibility. In nurse's responsibility, the very first is प्रीलिमिनरी असेसमेंट। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट का डायग्नोसिस चेक करना है, फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है। देन यू हैव टू इंस्पेक्ट द पर्टिकुलर पार्ट, जिस जगह पे हॉट फॉर्मेंटेशन करनी है यू हैव टू इंस्पेक्ट दैट पार्ट फॉर एनी लीजन्स और फॉर एनी वुंड्स, कि वहाँ पे कोई चोट तो नहीं है, वहाँ पे कोई घाव तो नहीं है, वहाँ पे कुछ कट्स तो नहीं है। So for the presence of any lesions or for the presence of any sort of wounds, you have to check for that particular part. उस particular part को आपको check करना है जहाँ पे hot fermentation करनी है. Fine. The next point is to determine the duration and frequency of treatment. ट्रीटमेंट कितनी देर के लिए, कितना ड्यूरेशन के लिए, कितना फ्रीक्वेंसी के लिए करना है, दैट यू हैव टू सी. देन यू हैव टू चेक फॉर एनी अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है, फॉर दैट यू हैव टू सी. देन you also have to see the client's general condition, that whether the client is conscious, whether the client is able to listen to you, or whether the client is able to follow the instructions whatever you will give. ठीक है, अगर हम पेशेंट से बोलते हैं अपना हाथ उठाइए तो क्या वो अपना हाथ उठा पाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आप पेशेंट को दे रहे हो वो फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. फॉर दैट यू हैव टू असेस द क्लाइंट एंड द क्लाइंट्स जनरल कंडीशन एज वेल. ओके, देन यू हैव टू चेक द आर्टिकल्स or the availability of articles, that whether all the articles are available in the ward or not. For that, these things you have to check. Then next is, now preliminary assessment is completed, then we will be preparing the articles for the procedure. Okay, so in articles, first of all there will be a kettle with the boiling water. पानी गर्म करने के लिए kettle चाहिए. So a kettle with, there will be a kettle with the boiling water. Then there should be a ringer with the रिंगर रॉड्स. ओके, हमें एक रिंगर चाहिए रिंगर रॉड्स के साथ, विच विल बी प्लेस्ड इन द बेसिन. बेटा रिंगर क्या है, रिंगर रॉड्स क्या है, मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी. मैं आपको जनरली एक आइडिया दे रही हूँ. रिंगर विद द रिंगर रॉड्स क्या होता है, रिंगर हमारा एक अपैरेटस होता है, उसमें रिंगर रॉड्स फिट होते हैं. रिंगर हमारा एक स्क्वायर काइंड ऑफ अपैरेटस होगा, उसके बीच में 2 रॉड्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, रॉड्स के बीच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बहुत पास में, जैसे एक ये रॉड हो गई, एक ये रॉड हो गई, तो बहुत पास में ये दोनों रॉड्स होंगे. इन दोनों रॉड्स के बीच में से वो कपड़ा निकलते हुए आएगा. ठीक है, फिर जब जैसे जैसे आप उस रॉड को आगे बढ़ाते जाओगे, आप उसमें देयर विल बी अ हैंडल गिवन. ठीक है, उस हैंडल के साथ जैसे जैसे आप उसको हैंडल को मूव करोगे वैसे वैसे वो कपड़ा स्क्वीज होके बाहर आते रहेगा. एक एंड से हम कपड़े को डालेंगे, दूसरे एंड से वो स्क्वीज होके वाटर जो गर्म उसमें पानी है, पानी से निकालेंगे ना क्योंकि कपड़े को, तो वो स्क्वीज होकर के बाहर आता रहेगा. ठीक है, सो दैट apparatus is known as ringer with the ringer apparatus, ringer rod. Okay, and why is this ringer needed? To wring out का मतलब क्या है, squeeze. ठीक है, to wring out the water from the cloth, इसके लिए हमें चाहिए. बेसिन भी एक चाहिए क्योंकि रिंगर को बेसिन के अंदर ही रखेंगे वरना इधर उधर पानी बहेगा. सो रिंगर विल बी प्लेस्ड इन अ बेसिन. देन नेक्स्ट वी रिक्वायर इज अ flannel piece. Sorry, so we need a flannel piece. flannel piece हमारा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इतना कि प्रॉपरली वो उस एरिया को कवर कर ले जहाँ पर हम हॉट कंप्रेशन देने जा रहे हैं. ठीक है, सो इतना बड़ा फ्लैनल पीस हमारे पास होना चाहिए. वाई डू वी नीड दिस फ्लैनल पीस? टू अप्लाई
warmth to the area. फ्लैनल पीस हमने लगाया, कवर कर दिया उस जगह पे, उसके बाद हमने उसके ऊपर वो जो हमारा फॉर्मेंटेशन क्लॉथ है, दैट क्लॉथ वी हैव टू keep over that area. Okay, so for this we need a flannel cloth. Then we also need 2 plates. प्लेट्स हमें किसके लिए चाहिए, ताकि वी कैन टेक द कॉम्प्रेस टू द बेड साइड. जो कॉम्प्रेस हमने अभी स्क्वीज करके जो निकाला है, कॉम्प्रेस जो कपड़ा है हमारा, वो कॉम्प्रेस वाला, टू टेक दैट कॉम्प्रेस टू द बेड साइड वी विल बी कीपिंग इट ओवर अ प्लेट. We can cover it with another plate and we'll be taking it to the bedside. Okay, so for that we need 2 plates. Then these are the things which will be outside the tray. Then we need a tray, and the things which will be in the tray will be there will be cotton balls in a container. एक कंटेनर में कॉटन बॉल्स होंगे. कॉटन बॉल्स हमें किस लिए चाहिए, टू अप्लाई ऑयल. ऑयल के एप्लीकेशन के लिए वी नीड कॉटन बॉल्स. देन वी ऑल्सो नीड द फोर्सेप. फोर्सेप क्यों चाहिए, क्योंकि कॉटन से ऑयल अप्लाई करेंगे तो कॉटन को हाथ से तो नहीं पकड़ेंगे, फोर्सेप से पकड़ेंगे. ठीक है, सो टू होल्ड द कॉटन बॉल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल वी नीड द फोर्सेप्स. द नेक्स्ट वी नीड इज द ऑलिव ऑयल और वैसलीन. ऑलिव ऑयल और वैसलीन क्यों चाहिए, सो दैट वी कैन अप्लाई द ऑलिव ऑयल और वैसलीन ओवर द एरिया जहाँ पे कॉम्प्रेस अप्लाई करना है. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर जहाँ पे भी हम मॉइस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पहले हमें पेट्रोलियम जेली लगा देनी है. क्यों, ताकि द स्किन विल नॉट बी अब्जॉर्बिंग द मॉइस्ट और द मॉइस्चर इन इट. अगर स्किन अब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, उसमें अगर कहीं पे छिल गया, थोड़ा भी चोट आ गया, तो स्किन जो है वो लैसरेट हो जाएगी. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड ऑल्सो टू हैव द ऑलिव ऑयल और वैसलीन, ताकि कंप्रेशन से पहले यू कैन अप्लाई इट ओवर द एरिया. Then next you need the paper bag to collect any kind of the dry waste. Then kidney tray for the collection of wet waste, which is for the collection of the used compress. जो compress हम use कर चुके हैं, ठीक है, उस compress को हम पानी में उस kidney tray में डाल देंगे. Okay, so for that you need a kidney tray. Then you also need a waterproof cover or the cotton pad. waterproof cover और cotton pad हमें किस लिए चाहिए, ताकि हमारा जो compress है उसके ऊपर हम उस वाटरप्रूफ कवर को या फिर उस कॉटन पैड को लगा सकें, ताकि उसमें से हीट लॉस ना हो. ठीक है, अगर वो जो हमारा जो कंप्रेस है, कंप्रेस को सिंपली इफ यू विल कीप ओवर द एरिया, थोड़ी देर के बाद हवा की वजह से क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा. तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, इसे कोई वाटरप्रूफ कवरिंग या फिर हमारा कॉटन पैड से हमको उसको ढक देना है, ताकि द हीट विल नॉट बी गेटिंग लॉस्ट. फ्लैनल, सबसे नीचे फ्लैनल पीस था, फ्लैनल पीस के ऊपर आपने कंप्रेस को रखा, कंप्रेस को आपने कवर कर दिया कॉटन पैड के साथ. देन यू विल बी कीपिंग इट. ओके, सो फॉर दैट यू नीड इट. देन यू नीड द एब्डोमिनल बाइंडर एंड द सेफ्टी पिन. एब्डोमिनल बाइंडर हमें किस लिए चाहिए, ताकि कंप्रेस को जब हम एरिया में रख रहे हैं तो वो प्रॉपर जगह पे रहे, हिलता डुलता ना रहे, गिरे ना. तो हम उसको जगह पर रख के एब्डोमिनल बाइंडर के साथ उसको फिर हम प्रॉपरली बाइंड कर देंगे, सो दैट इट विल नॉट बी मूविंग. देन नेक्स्ट वी नीड हॉट वाटर बैग विद कवर. हॉट वाटर बैग विद कवर क्यों चाहिए, ताकि अगर हमारा कंप्रेस जो है वो ठंडा हो रहा है तो उसके ऊपर हम हॉट वाटर बैग भी रख सकते हैं, ताकि वो गर्म बना रहे, वो ठंडा ना हो जाए. सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ हॉट वाटर बैग विद इट्स cover. Okay, then so this was about your articles. The next is you have to prepare the client. How you have to prepare the client, explain the procedure to the client. You have to provide privacy if needed. Then you have to drape the patient according to the area wherever you are giving this this fomentation. Then the patient has to be prevented from draught. Then you have to place the client you have to place the client slightly off the center of the bed towards the edge of the bed. ठीक है, मतलब पेशेंट को बेड के बीचों बीच में नहीं रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट बेड के बीचों बीच में रहेगा तो हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, हमें आगे झुक करके काम करना पड़ेगा. सो इट कैन कॉज बैक पेन टू द नर्स एज वेल. सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू लाई एट एन एज ऑफ द बेड. बेड के किनारे पे रहेगा, ताकि आपके लिए भी पेशेंट को रीच कर पाना ईजी रहेगा. सो दैट यू हैव टू सी. देन यू हैव टू प्लेस अ मैकिनटॉश एंड अ टाल under the client's back so that the bed will be protected. क्योंकि यहाँ पे हम hot compress यूज़ कर रहे हैं, moist method है, तो bed गंदा हो सकता है, गीला हो सकता है. So under the client's back you can place the Macintosh and the towel. So then this has to be mentioned in the articles. ये articles में mention नहीं है, then you'll be mentioning it in the articles as well. Macintosh and the towel will be needed as well. Then
You have to place the abdominal binder in place. abdominal binder को पहले ही हम पोजीशन में रख देंगे ताकि जैसे ही हम कंप्रेस स्टार्ट करना हो, कंप्रेस रख के जल्दी से हम abdominal binder को बाइंड कर दें. So it has to already be at the place. उसके बाद यू हैव टू एक्सपोज द एरिया. जिस एरिया में हमें ये करना है उस एरिया को एक्सपोज करेंगे, वहाँ पे ऑलिव ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि कोई बर्न ना हो, कोई एब्जॉर्प्शन ना हो वाटर का. सो यू विल बी अप्लाइंग ऑलिव ऑयल ओवर इट. देन जब पार्ट हमारा प्रिपेयर्ड है, देन अगर व्हेन द पार्ट इज़ रेडी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल. ओके, like that it has to be done. Then comes the procedure. What you have to do in procedure, first of all you have to wash your hands. Then you have to prepare the hot compress either at the bedside or in the treatment room where it can be taken to the client without any delay. देखो, this hot compress can be prepared either in the treatment room. ट्रीटमेंट रूम में ही जा करके आप प्रिपेयर कर सकते हो, पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो, मतलब ट्रीटमेंट रूम से प्रिपेयर करके तब भी पेशेंट के पास जा सकते हो, या फिर सारी चीज़ें लेकर के पेशेंट के पास जा करके देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर. अब डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ प्रिपेयर करोगे. ऐसी जगह पे प्रिपेयर करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो. अगर ट्रीटमेंट रूम दूर है, कभी कभी क्या होता है वार्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. इफ़ द ट्रीटमेंट रूम इज़ अवे फ्रॉम द पेशेंट्स यूनिट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग नियर टू द पेशेंट. पेशेंट के रूम में ही जाकर के आप प्रिपेयर कर लो. अगर ट्रीटमेंट रूम और जैसे पेशेंट का कमरा आस पास में है तो जल्दी से हमने प्रिपेयर किया विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. यू आर गोइंग टू द पेशेंट एंड यू आर स्टार्टिंग द कॉम्प्रेस. तो इस तरीके से यू हैव टू डू इट. देन थर्ड मेथड इज यू हैव टू प्लेस द फॉर्मेंटेशन पैड इन द रिंगर एंड कीप इट इनसाइड द बेसिन. हमारा जो ये फॉर्मेंटेशन पैड है जिससे हम फॉर्मेंटेशन दे रहे हैं, जिसको हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, सो दैट फॉर्मेंटेशन पैड हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द रिंगर. जो रिंगर में हमारे 2 रॉड्स थे उसमें रिंगर में हमने प्लेस कर दिया उसको. उसके बाद यू हैव टू कीप इट इनसाइड द बेसिन विद द फ्री एंड्स आउटसाइड. ठीक है, आपने बेसिन में उसके बाद इस रिंगर को डाल दिया और जो दोनों इस जो फॉर्मेंटेशन पैड के जो दोनों एजेस हैं वो आराम से खाली ऐसे ही बाहर निकले हुए हैं. आपने क्या किया, इसको उस रिंगर के अंदर डाल दिया. उसके बाद यू हैव टू इंसर्ट द रिंगर रॉड्स इन इट. उसके बाद आपने रिंगर रॉड्स को आपने उसमें इंसर्ट किया. सी रिंगर रॉड्स को हम क्या कर सकते हैं, कपड़े को पहले डाल देंगे, फिर रिंगर रॉड्स को ऊपर और नीचे हमने अटैच कर दिया. दिस कैन हैपन, क्योंकि अगर रॉड्स पहले से लगे रहेंगे तो कपड़े को डालने में प्रॉब्लम आएगा. अगर ये रॉड्स पहले से लगे हैं तो बीच से डालने में बहुत प्रॉब्लम आएगा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप द पैड इन इट, देन यू कैन एडजस्ट द रॉड्स. वापस फिर आपने रॉड ऊपर वाला रॉड लगा दिया, नीचे वाला रॉड लगा दिया. लाइक दैट ऑल्सो इट कैन बी मैनेज्ड. देन नेक्स्ट इज now what is the rationale or what is the reason of placing the fermentation pads in the ringer and then applying it? Because the presence of water will increase the occurrence of burn, and the ringer here, what will it do, it will help to remove the excess water from the fermentation pads. क्यों हम इसको रिंग आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा पैड के अंदर तो जल जाएगा पेशेंट. तो एक्सेस वाटर को हम रिंगर से क्या करते हैं, निकाल देते हैं. दैट इज़ द रीज़न. ओके, देन फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसीजर इज यू हैव टू पोर द बॉइलिंग वाटर ओवर द पैड एंड रिंग आउट. अब आपने क्या किया, सूखा पैड आपने पहले उसके अंदर डाला था, ठीक है, रिंगर को सेट कर दिया, रिंगर रॉड्स को भी सेट कर दिया. उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यू विल बी पोरिंग दैट हॉट वाटर ओवर द फॉर्मेंटेशन पैड. उसके बाद उससे आप देन यू विल बी रिंगिंग आउट द पैड एज ड्राई एज पॉसिबल. जितना वो सूखा हो सके उतना उसे आपको स्क्वीज करके सुखा देना है. ओके, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. कोई स्पंज अगर आप गीला करो उसके बाद उसे स्क्वीज कर दो तो वो ड्राई थोड़ी ना होता है, बस एक्सेस वाटर निकल जाता है उसमें से. सिमिलरली इट विल बी हैपनिंग हियर ऑल्सो. सो देन यू हैव टू कीप इट इन द हीटेड प्लेट्स. जो हमारी प्लेट्स पहले से हमने जो 2 प्लेट्स ली हुई थी वो प्लेट्स को पहले से ही हम गर्म कर लेंगे. देन इन दोज हीटेड प्लेट्स these fermentation pads will be placed and you have to cover it after removing the rods. Then quickly take it to the हमने एक बार उसको रिंग कर लिया, प्लेट में हमने रख दिया, उसको कवर कर दिया, फिर हमने रिंगर से रिंगर रॉड्स को हटा दिया. ओके, देन how is it helping? It is helping to prevent the heat loss from the pad. नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रोसीजर का, you have to open the ringer and take out the pad. Shake it well for steam to escape the
कॉम्प्रेस। अब आपने क्या किया, रिंगर को खोला, उसमें से आपने पैड को निकाला, पैड को निकालने के बाद यू हैव टू शेक द पैड। वाई यू हैव टू शेक द पैड? सो दैट जो भी स्टीम उसके अंदर है सिर्फ वार्मथ रहे, जो स्टीम उसके अंदर है वो निकल जाए उसमें से। सो फॉर दैट यू हैव टू शेक इट and then you have to test the temperature by applying it on the back of your hand. उसके बाद आप अपने हाथ के पीछे उसको रख करके एक बार अप्लाई करके देख सकते हो कि टेम्परेचर सही है या नहीं सही है। सो फॉर दैट यू कैन कीप इट एट द बैक ऑफ योर हैंड, मीन्स इधर इस वाले एरिया पे यू कैन कीप इट, ताकि आप ये देख लो कि टेम्परेचर सही है या नहीं सही है। ओके, एंड देन उसके बाद आप व्हाट विल यू डू, देन यू विल बी अप्लाइंग द कॉम्प्रेस ओवर द एरिया। ओके, जहाँ जिस जगह पे ज़रूरी था उस जगह पे आपने कॉम्प्रेस को रखा। देन आफ्टर कीपिंग द कॉम्प्रेस यू हैव टू कवर द कॉम्प्रेस विद द waterproof cotton pad or any waterproof material. You have to cover it. Okay, the next step what you have to do, you have to secure it with the abdominal binder. ठीक है, किसी बैंडेज के साथ या abdominal binder के साथ you have to secure it in the place. abdominal binder आपने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, तो अब आप उसी के साथ उसको सिक्योर कर देंगे, टाई कर देंगे। नेक्स्ट यू कैन प्लेस द हॉट वाटर बैग ओवर द बैंडेजेस। अब आपने सब कुछ सारा अपैरेटस एब्डोमिनल बाइंडर के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप द हॉट वाटर बैग, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो हॉट वाटर बैग के साथ मिल करके एडजस्टेड रहे और वो ठंडा नहीं हो। फाइन, सो लाइक दैट इट वॉज द प्रोसीजर फॉर हॉट फॉर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट। फॉर आफ्टर केयर यू हैव टू चेंज द कंप्रेस। कंप्रेस को हर 5 से 10 मिनट में यू हैव टू चेंज। ओके, और हर 5 से 10 मिनट वैसे तो दिया हुआ है, पर जितना रिक्वायरमेंट है पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितना पेशेंट को हॉट चाहिए फॉर्मेंटेशन, उसके अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट द टाइम। दिस हियर तो इट इज़ गिवन 5 to 10, बट दैट कैन बी फॉर 15 मिनट तक भी आप लगा सकते हो, 5 मिनट में भी आप चेंज कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द environmental temperature, depending upon the rest of the factors, you will be deciding कि कितनी देर में वो ठंडा हो सकता है और कितनी देर में आपको उसे चेंज करना है। जो कंप्रेस आप यूज़ कर चुके हो, अब चेंज कर रहे हो ना, तो द कंप्रेस विच यू ऑलरेडी हैव यूज्ड यू हैव टू डिस्कार्ड इट इन द किडनी ट्रे। देन यू हैव टू रिमूव द फाइनल ड्रेसिंग, जो अपने फाइनल जो लास्ट वाला आप कंप्रेस लगा रहे हो, दैट फाइन आफ्टर रिमूविंग दैट फाइनल ड्रेसिंग 20 उसके बाद 20 ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसीजर हमारा पूरा जो है, इट कैन बी फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स। 20 मिनट से 30 मिनट्स तक आप हॉट फॉर्मेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, सो 20 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करना है, बिकॉज अदरवाइज इट कैन लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, अगर आप ये नहीं करोगे डिसकंटिन्यू, सो दैट कैन लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द वार्मथ इन इट। उसमें क्योंकि वार्मथ है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। And this vasoconstriction is said to be the secondary effect of the hot application. ठीक है, बहुत ज़्यादा hot application की वजह से, बहुत लंबे duration की वजह से it can lead to vasoconstriction. Then next is after removing the final dressing, what you have to do, you have to dry the area. Dry में again you have to make sure you are not wiping it with the towel. You have to pat it dry. You are drying the area, then आफ्टर ड्राइंग इट इफ़ द मॉइस्चर इज स्टिल लेफ्ट देयर, तो मॉइस्चर की वजह से आपको पता है कि क्या हो सकता है, मैसरेशन हो सकता है, सो पेशेंट को चोट आ सकती है, सो दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस। देन द एरिया विल बी इंस्पेक्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेडनेस और एनी काइंड ऑफ बर्न। आपको ये भी देखते रहना है कि पेशेंट को बर्न तो नहीं हो गया, कोई रेडनेस तो नहीं है एरिया में। अगर ऐसा कुछ है तो इमीडिएटली दिस हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द वार्ड इंचार्ज or to the seniors, it has to be reported. उसको ड्राई करने के बाद you also have to apply the olive oil that you can apply over the area. Then आपको पेशेंट को कवर कर देना है। पेशेंट को क्यों कवर कर देना है, बिकॉज पेशेंट को अचानक से बहुत पहले गर्मी दे रहे थे हॉट एप्लीकेशन की वजह से, उसके बाद पेशेंट अचानक से ठंडे इन्वायरमेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू चिल्स। पेशेंट को शिवरिंग हो सकती है, चिल्स हो सकता है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम चिल्स वी हैव टू cover the patient after the procedure. Then all the articles will be taken to utility room. The articles will be properly cleaned. जो हमारे used pads हैं उसको हमें disinfect करना है. The materials or the equipments or the articles which are to be discarded will be discarded. Then
you'll be washing your hand, then the procedure will be recorded in the nurse's record. If any sort of complication happened during the procedure, that has to be recorded as well. Any kind of alteration if was there, so that has to be recorded as well. Then after recording of all these things, you have to also record the client's tolerance for the treatment. How was the client's response? How was the client's tolerance to the procedure? All these things will be recorded properly. Then what were the results after the treatment was provided, that also has to be reported. प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद पेशेंट को बिल्कुल छोड़ नहीं देना है. यू हैव टू सी दैट हाउ इज़ द पेशेंट्स कंडीशन नाउ. पेशेंट को चिल्स तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को शिवरिंग तो नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू सी. देन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीजर, यू हैव टू प्रोसीजर आपने रिकॉर्ड कर लिया पूरा, फिर आप बेड साइड एक बार जा करके वापस से यू हैव टू इंस्पेक्ट द एरिया. ठीक है, 30 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट आप जा करके वापस से एक बार उस एरिया को 30 मिनट्स में एक बार देख लो, फिर एक बार 1 घंटे में देख लो कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, सो दैट यू कैन इंस्पेक्ट. देन अगर प्रोसीजर को हमें वापस से रिपीट करना है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, सो दैट ऑल्सो विल बी डन बाय यू. ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर हॉट फर्मेंटेशन. So the next method we have is the stoops. Stoop is the medical fermentation. Stoops को medical fermentation भी बोलते हैं. Stoops हमारा क्या करता है? Basically stoops is helping for the augmentation of the hot application. जो हीट लोकली अप्लाई करी गई है, जो कंप्रेस हमने लोकली किया है, उसका इफेक्ट ऑगमेंटेड रहे, उसका इफेक्ट वहाँ पे रुका रहे, इसके लिए स्टूप्स आर मेनली गिवन. सो आई विल बी टेलिंग यू. स्टूप्स हमारे क्या होते हैं? दोज आर द मॉइस्ट हीट एप्लीकेशंस इन विच अ मेडिसिन इज अप्लाइड लोकली. हम क्या करते हैं, इसमें एक मेडिसिन को लोकली अप्लाई करते हैं. दैट मेडिसिन कैन बी योर टर्पेंटाइन. तो ये टर्पेंटाइन को लोकली हम अप्लाई करते हैं, किस लिए? ताकि जो कंप्रेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट वहाँ पे बना रहे, वो हट ना जाए वहाँ से. ठीक है, उसका इफेक्ट वहाँ पे बने रहे, इसके लिए वी आर यूजिंग अ मेडिसिन हियर. ठीक है, व्हाट इट डज नाउ, इट इंक्रीजेज द पेरिस्टाल्सिस, इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल स्पाज्म. इसके जो आर्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे जैसे हम हॉट फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, सिंपल वैसे ही आर्टिकल सेम होंगे हमारे. ठीक है, एंड जो भी हम एक बार जब स्टूप्स का एप्लीकेशन हम कर लेते हैं, वाइल वंस द एप्लीकेशन ऑफ द स्टूप्स इज डन, सो आफ्टर द एप्लीकेशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंसर्ट अ फ्लैटेस्ट ट्यूब. ओके, एक बार स्टूप्स का जब एप्लीकेशन हो चुका, जब स्टूप्स वाला कंप्रेशन हम कर चुके, उसके बाद इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द टू इंसर्ट द फ्लैटेस्ट ट्यूब. फ्लैटेस्ट ट्यूब को हमें क्यों इंसर्ट करना है? So that whatever flatus is there, that can be expelled out from the body. So that flatus tube has to be inserted after it. The drugs हम क्या क्या use कर सकते हैं इसमें? Turpentine can be used 1 part. So here the medicines which can be used is turpentine, that can be 1 part. Then it can be well mixed with the olive oil. The olive oil can be 3 parts. 3 parts of olive oil can be mixed with 1 part of turpentine, and this mixture can be made for the adults. For children, turpentine can be taken 1 part, with olive oil taken 6 parts. That much can be taken for the children. Okay, so that is your stoops. This much is enough for you. Next is your Next is your cataplasm. Cataplasm is your poultices. That is the another name to which is given for the cataplasm. So now what is poultices? In poultices, what are we doing? We are applying the moist heat application in the form of the spongy mass. Okay, what are we doing here? The hot application is given. Hot application, अब वो hot application हम कैसे दे रहे हैं? एक spongy mass हम prepare कर रहे हैं. That spongy mass is providing that spongy mass is acting like an agent for hot application. ठीक है, ये spongy mass हमारा हम किस तरीके से prepare कर सकते हैं? एक और चीज़, ये जो spongy mass हमारा होता है, spongy mass मतलब कुछ बड़ा सा हैवी सा कुछ एक मास प्रिपेयर कर रहे हैं हम, ताकि उस मास के थ्रू हॉट एप्लीकेशन दे सकें. देन ये जो स्पॉन्जी मास होता है, इट कैन कीप इट सेल्फ हॉट फॉर अ वेरिंग डिग्री ऑफ टाइम, फॉर अ वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, सॉरी. तो एक लंबे समय तक ये खुद को वार्म रख सकता है. फाइन.
सो इसकी जो हॉट है, जो इसकी हीटनेस है, जो वार्मथ है इसके अंदर, वो डिपेंड करता है कि पॉलिटाइसिस में हम क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं. फाइन. अगर हम स्टार्च पॉलिटाइसिस बना रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, आई विल बी टेलिंग यू. You have to first take starch, then in that starch sodium bicarbonate is added. Okay, take the starch and sodium bicarbonate, and the proportion of it will be, starch will be 8 and this sodium bicarbonate will be 1. That is 8:1 के proportion में आपको starch लेना है और sodium bicarbonate लेना है. उसका एक पेस्ट बना लेना है. ठीक है, पेस्ट बनाना है कोल्ड वाटर के साथ. स्टार्च लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, फिर कोल्ड वाटर के साथ आपने उसका एक पेस्ट बना लिया. उसमें आप चाहें तो यू कैन ऐड मोर बॉइलिंग वाटर वाइल द मिक्सचर इज बीइंग स्टर्ड. उसके बाद आपने क्या करना है, उसको, उस मिक्सचर को आपने स्टर करना है. ठीक है, उस मिक्सचर को आपको प्रिपेयर करना है, कुक करना है, यू कैन से. तो जिस टाइम पे वो मिक्सचर स्टर हो रहा होगा, उसको स्टर करने के टाइम पे यू कैन ऐड सम हॉट वाटर इन इट. स्टार्टिंग में कोल्ड वाटर ही डालना है. जिस टाइम पे मिक्सचर स्टर हो रहा होगा उस टाइम पे यू कैन ऐड सम हॉट वाटर टू इट. देन यू हैव टू कुक दिस मिक्सचर टू गेट अ जेली मास. उसको मिक्सचर को आप कुक कर सकते हो ताकि एक जेली मास प्रिपेयर होकर आपके पास आ जाए. फिर इस जेली मास को यू हैव टू स्प्रेड ऑन अ लिंट पीस. एक लिंट पीस के ऊपर, एक फ्लैनल क्लॉथ के ऊपर उस जेली को आपको स्प्रेड करना है. जेली को आप 2-3 लेयर्स में स्प्रेड कर सकते हो ताकि वो इतना थिक हो जाए कि उसको आप आराम से पलट सको. ठीक है, बहुत थिन रहेगा तो क्या होगा, इट विल कीप ऑन ब्रेकिंग, आप उसको पलट नहीं पाओगे. सो यू कैन अप्लाई अ फ्यू लेयर्स ऑफ दैट जेल, ऑफ दैट जेली मास, सो दैट यू कैन टर्न इट टू द अदर साइड. ये थिकनेस हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.5 से लेकर के 0.5 इंच तक, सॉरी 0.25 से लेकर के 0.5 इंच तक. दिस मच थिक इट कैन बी. इंच है बेटा, याद रखना. ठीक है, 0.25 से लेकर के 0.5 इंच कैन बी द थिकनेस ऑफ इट. देन यू हैव टू कवर इट विद अनदर पीस. एक पीस के ऊपर वो ऑलरेडी था, दूसरे पीस से आपने उसको कवर कर दिया. आफ्टर कवरिंग इट यू कैन बी, ताकि कवर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का लॉस ना हो ऑफ the heat should not be getting lost from it. That's why you are covering it. Then you have to keep it to the client and plates में रख करके, जो the heating plates which we were using in the hot fermentation, heated preheated plates में you can keep it and you can take it to the bedside of the patient. Okay, then इसको 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक इट इज़ लेफ्ट इन द प्लेस. जिस जगह पे आपको ये अप्लाई करना है उस जगह पे 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक यू कैन कीप इट ओवर दैट पर्टिकुलर place itself. Okay, so that is about your polytesis. Okay, polytesis. Okay. So now the next is your warm soaks. Warm soaks आपके क्या हो जाते हैं, जो local bathe हम देते हैं, ठीक है, that is known as warm soaks. That local bathe is known as the warm soaks itself. So warm soak में हम क्या करते हैं, यहाँ पे body को immerse कर देते हैं in a solution or to wrap a part with the gauze dressing. बेसिकली वार्म सोक्स में क्या करते हैं, कोई गॉज ड्रेसिंग हमारी होगी, वो इमर्स्ड होगी वाटर से, उसको हमने निकाला स्क्वीज करके, द पार्ट इज कवर्ड विद दैट ड्रेसिंग. ओके, और समटाइम्स द बॉडी कैन ऑल्सो बी इमर्स्ड इन वाटर फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड. देन if we are planning it for, if there is any open wound in the area where this has to be provided, so proper sterile technique is to be followed. If there is any sort of open wound, then the soaks are usually indicated in such of the in these a few reasons are there. In while the patient has any of these reasons, then only the warm soaks are referred or is recommended for the patient. पहला क्या है, to apply heat, thus hastening suppuration and softening the एक्सुडेट. कब हम ऐसा कर रहे हैं, अगर ओपन वूंड है तो ओपन वूंड के केस में कब ऐसा हम कर सकते हैं, जब हम ये चाह रहे हैं कि सेपरेशन हो, पस जो है वो प्रोड्यूस होके बाहर आ जाए. ओके, इफ़ वी वांट इट टू हैपन देन वी आर डूइंग इट. और इफ़ वी वांट टू सॉफ्टन द एक्सुडेट्स, अगर एक्सुडेट्स उसके वूंड के आसपास जमा हो रखे हैं और हमें वो एक्सुडेट्स को सॉफ्ट करना है, सो फॉर दैट इट कैन बी डन. नेक्स्ट इज फॉर टू अप्लाई द मेडिकेशन. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेडिकेशन दिस मेथड कैन बी यूज्ड एज वेल. मेडिसिन को बहुत देर तक हमने यहाँ पे ड्रेसिंग करके रखा,
उससे क्या होगा, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इटसेल्फ. सो फॉर दैट इट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट, टू क्लींस द एरिया सच एज अ वुंड इन विच देयर इज स्लोइंग टिश्यूज. ऐसे वुंड में हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे कुछ डेड टिश्यूज ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं जिनको हमें रिमूव करना है. फॉर द रिमूवल और फॉर क्लीनिंग ऑफ दैट वुंड ऑल्सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट इज टू रिलीव एडिमा or to relieve ischemia or to relieve or to provide relief from the muscle spasm. In reasons में it can be done. Okay, इसमें हम क्या, and also these were the reasons जिसमें कि we can provide this hot application with this particular method. warm soaks के साथ हम इस in particular reasons में दे सकते हैं. Then there is also the temperature which can be given. किस temperature में this warm soaks can be given. द वेरी फर्स्ट इज, इसमें हम क्या करते हैं, द बॉडी हैज़ टू रिसीव हीट. जो आप पेशेंट को ये दे रहे हो वार्म सोप्स, उसका पर्पस क्या है कि पेशेंट के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वार्मथ मिल पाए. ठीक है, उसको हीट रिसीव हो सके. फॉर दैट यू आर डूइंग इट. सो समटाइम्स यू, जिस जगह पे हमें ये हॉट एप्लीकेशन देना है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम वार्म वाटर में सबमर्ज भी कर सकते हैं. ठीक है, ऊपर दिया हुआ था कि बॉडी को सबमर्ज भी कर सकते हैं. सबमर्जन के लिए टेम्परेचर क्या होगा वाटर का, सबसे पहले हमने एक बेसिन लिया, बेसिन में हमने वाटर डाला, जिस वाटर का टेम्परेचर होगा 105 to 110. ठीक है, 105 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पानी का टेम्परेचर होगा, बेसिन में होगा, उसमें हम दैट पर्टिकुलर एरिया कैन बी सबमर्ज्ड. ओके, लाइक दैट इट कैन बी डन. इसको 20 मिनट्स तक के लिए इसको भी प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू करना होता है. देन you have to also check for that the area should not be getting burned or any for the such things. You have to observe like we were doing in the rest of the conditions. So for these things you have to see. Next is your paraffin baths. Warm soaks is over now. Next is your paraffin baths. Paraffin bath हमारा जो है, it is also one of the most commonly used methods of providing moist heat application. Then it is commonly given for painful hands, especially for the clients who have rheumatoid arthritis. जिन patients में rheumatoid arthritis होता है उनमें क्या होता है, पेन होता है, राइट. मेनली हैंड्स में पेन होता है, जॉइंट्स में, हैंड के जॉइंट्स में, लेग्स में देयर विल बी पेन. सो मेनली दिस काइंड ऑफ हॉट एप्लीकेशन इज गिवन फॉर सच पेशेंट्स जिनको पेनफुल हैंड्स हैं, मेनली इन rheumatoid arthritis. इसमें क्या होता है, द मिक्सचर फॉर दिस ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 15 to 30 ml of mineral oil to 1 pound of the paraffin wax. ठीक है, इतना आपका रेशियो रहता है. क्या है रेशियो, 15 to 30 ml होगा आपका मिनरल ऑयल, देन 1 pound of paraffin wax will be there. इसको आपने, ये ऑयल को पैराफिन वैक्स के साथ आपने मिक्स किया, उसके बाद इन दैट द पेशेंट विल बी कीपिंग द एरिया वॉट एवर इज पेनिंग. फॉर दैट इट इज़ बेसिकली यूज्ड. ओके, नेक्स्ट मेथड इज योर सिट्स बेद. सिट्स बेद मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, सो दैट यू पीपल ऑलरेडी नो. सिट्स बेद में वाटर का टेम्परेचर क्या था, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ. द टेम्परेचर विल बी 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट. दैट इज द टेम्परेचर फॉर सिट्स बेद. फाइन. देन द नेक्स्ट वन हियर इज योर I think this much is enough for you people. Still I'll tell you, beta, these many methods which I have taught you so far in local moist heat application are enough. There are these three methods are given here, that is rubefacents, then there is vesicants are there, then there are pustulants are there. These methods are no longer being practiced. I'll just give you a brief gist about it. Okay, these are basically, these three are not so important, and it is also not given in all the books. Okay, so I'll be just telling you once that if you, some of you, if you have some doubts regarding it, that ma'am what is it we want to learn, so that I'm telling you. Rubefacents, what these are, first of all, these are the agents which acts over the skin by vasodilation. These basically vasodilates and it reddens the area. ये वैसोडाइलेशन करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को रेड कर देते हैं. इनका जो एक्शन है, इनका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट होता है. इमीडिएटली इट इफेक्ट्स एंड इट एक्ट्स ओनली फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो एक्ट करेगा, इमीडिएटली एक्शन करता है और बहुत थोड़ी देर के लिए उसका जो असर है वो रहता है. कॉमन हमारा जो रूबीफेसेंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ योर मस्टर्ड प्लास्टर, मस्टर्ड एंड टिंचर आयोडीन इज देयर, टर्पेंटाइन इज देयर.
वो बहुत तुरंत से वो एक्शन करता है, और वो एक्शन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है. सो दैट इज़ योर रूबिफिसेंट्स. देन वेसिकेंट्स आर देयर. वेसिकेंट्स हमारे क्या होते हैं? वेसिकेंट्स वो एजेंट हैं हॉट एप्लीकेशन के लिए जिनको जब स्किन पे हम अप्लाई करते हैं तो वो ब्लिस्टर्स फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा जो मेथड है ये पहले यूज़ किया जाता था, अब ये बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ऑल्सो इट इज़ डेंजरस. ओके, इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट से ज़्यादा इसका इट इज़ ऑल्सो अ डेंजर फॉर द पर्सन. इट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शंस. सो अब इस मेथड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर ब्लिस्टर होगा तो क्या होगा, दैट ब्लिस्टर इट विल बी वर्किंग एज अ मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन. सो इस मेथड को इसके लिए अब हम यूज़ नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर पस्ट्यूलेंट्स. पस्ट्यूलेंट्स हमारे किस तरीके से एक्ट करते हैं? ये भी हमारे कुछ एजेंट्स होते हैं जिसको जब हम स्किन में लगाते हैं तो इट फॉर्म्स पस्ट्यूल्स, दाने फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, पस्ट्यूल्स हमारे क्या होते हैं? बॉयल विच इज़ फिल्ड ऑफ पस. ठीक है, दोज आर द जस्ट, सो दैट इज पस्ट्यूल. पस्ट्यूल्स हमारे क्या होते हैं? दोज आर सम, दाना हो जाता है, बॉयल हो जाता है, एंड द टॉप ऑफ दैट बॉयल विल बी फिल्ड ऑफ वाइट पस. दैट इज योर पस्ट्यूल. ठीक है, सो पस्ट्यूलेंट्स को भी अब हम नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज अगैन दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग हॉट मॉइस्ट एप्लीकेशन. ओके, सो या this was about your local moist heat application. The rest, the next topic will be your cold application that I'll be dealing with in the next class. Okay, thank you class.